الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین منبر پاک کے تشریف فرما موقر علماء کرام و تمام سامعین حضرات ان سے حضور خطیب ابراہیم میں تشریف لانے والے تمام زائرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض گزار ہوتے ہیں آقا کی بارگاہ میں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک کی گانے نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا محمد معدن الجود والکرم و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے اور نبی اور آل نبی پر باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو کہیں میرا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم رہیں تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوستو، آج آپ عرس نظامی میں تشریف لائے ہو، حضور خطیب البراہیم علیہ رحمت الرضوان کی ذات پر تحریر الحمدللہ اب صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ دیکھیے، واقعی ایک ایسے مرشد کو اللہ نے عطا کیا ہم سب کو کہ جن کے صبح و شام کو، جن کے دن و رات کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، وہ زندگی آپ کی جو کٹی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، دین کی خدمتوں میں آپ نے ساری عمر گزاری۔ اللہ تعالیٰ حضور خطیب البراہیم کے فیضان سے ہم غلامان خطیب البراہیم کو مالا مال فرمایا۔ دیکھو دوستو، دور و دراز سے چل کر آنے والوں، آپ یہاں آئے، آپ کے آنے میں کتنا فائدہ ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں ایک واقعہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے اور وہ اللہ کے ولی کو دوست رکھتا ہے مومن، تو اللہ تعالیٰ اس مومن کو اپنا دوست چن لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ایک راستے پہ بٹھا دیا۔ اب اس راستے پر آنے والا جب پہنچا، ایک انسان پہنچتا ہے، ایک مرد مومن پہنچتا ہے، تب تک وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں بیٹھا تھا اس نے روک لیا، کہا جناب کہاں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا جو سامنے گاؤں دکھ رہا ہے اس گاؤں میں جا رہا ہوں، ایک اللہ کا محبوب بندہ ہے، ایک اللہ کا مقرب بندہ ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تب تک اس فرشتے نے پوچھا، کہا بتائیے آپ اس سے ملنے جا رہے ہو، کیا اس کو قرضہ دیے ہو؟ آپ اس سے ملنے جا رہے ہو، احسان پہ احسان کیے ہو، جو قرضہ لینے جا رہے ہو، احسان جتلانے جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ تب تک اس مرد مومن نے کہا کہ نہیں، میں اس مومن سے ملنے، میں اس پاک باز انسان سے ملنے، میں اس اللہ کے ولی سے ملنے اس لیے جا رہا ہوں۔
अल्लाह की रज़ा के लिए मिलने जा रहा हूँ, मुझे उससे मोहब्बत है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया इतना कहना था, तब तक वो बोल पड़ा फरिश्ता कि ऐ मर्दे मोमिन सुन, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि उस वक्त फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह मुझे यहाँ भेजा है कि अगर तू मेरे दोस्त से मोहब्बत करता है और उसकी ज़ियारत के लिए जाता है तो मैं तुझे अपना दोस्त चुन लेता हूँ। और जब अल्लाह अपना दोस्त चुनता है, उससे मोहब्बत करता है, तो मलाइका को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों तुम भी मेरे उस बंदे से मोहब्बत करो जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। आप इतना दूर से चल के आए हो, अब बताइए आप ऐसी महफिल में आए हो, मोहब्बत में आए हो, आप ज़ियारत के लिए आए हो, आपसे एक अल्लाह के वली से मोहब्बत है इसलिए दौड़े चले आए, आपने अपने आराम को भुला दिया बस सिर्फ एक अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त की मोहब्बत में। तो बेशक इस बात पर जो है ये बात साबित हो रही है कि आपने एक अल्लाह के सच्चे वली से मोहब्बत की है। आप हजरात इस जलसागाह में बैठे, आपको इंशाअल्लाह रहमान उर्से निज़ामी में अच्छी अच्छी बातें दी जाएंगी, अच्छा पैगाम दिया जाएगा और आप यहाँ जो सुने उस पर अमल करें, इसे ले जाकर अपने मोहल्ले वालों में तकसीम करें कि आज उर्से निज़ामी से, इस मिंबर पाक से, उलमा की ज़बान से अल्लाह और रसूल का बयान सुन के आया हूँ, आपकी मुबल्लिग बन करके मोहल्ले को जाके सुनाओ कि ये पैगाम मिला है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए देखिए गौसे आज़म का ज़माना था, गौसे आज़म के दौर में एक इंसान का इंतकाल हुआ, जब उसको रख कर आए लोग, रात होती है, इसके बच्चे सोते हैं तो ख्वाब देखते हैं कि मेरा बाप अजाब में घिरा हुआ है, मेरा बाप परेशानियों में मुब्तला है और कह रहा है ऐ मेरे लाल बड़े पीर की बारगाह में चले जाओ, अल्लाह के वली की बारगाह में चले जाओ, अल्लाह अल्लाह वहां जा करके उनसे दुआ करा दो, अल्लाह अल्लाह। फौरन जब सुबह हुई ये बेदार हुआ, बेदार होने के बाद गया पहुंचा गौसे आज़म की बारगाह में, बड़े पीर रोशन ज़मीर की बारगाह में, अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचता है और अर्ज करता है हुजूर ऐसा ऐसा मंजर हो गया, मेरे बाप का इंतकाल हुआ, रात में मैंने उन्हें ख्वाब में देखा तो अजाब में घिरे हैं, उन्होंने कहा जाओ बड़े पीर से दुआ करा दो। आकाए गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ठीक है, बताओ तुम्हारे बाप का गुजर हमारे इस मदरसे से हुआ है कि नहीं, कभी तुम्हारा बाप इस ग्राउंड में आया है कि नहीं। बच्चे ने कहा बेशक मैं ज़मानत देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मेरा बाप आपकी दरगाह में भी बैठा है, आपके अदारे से भी गुजरा है, इस मदरसे के ग्राउंड से भी गुजरा है। अल्लाह अकबर इतना कहा तो ठीक है जाओ। अब हुजूर गौसे आज़म दुआ फरमाते हैं, दूसरी रात आती है, ख्वाब देखता है कि मेरा बाप एक अच्छे बाग में घूम रहा है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है। ऐ लोगों, आप हुजूर खतीब इब्राहिम के इस उर्स में आए हो, वाकई आप यहाँ बैठे हो, आप सुबह तक बैठे रहोगे, अकीदत और मोहब्बत के साथ बैठे रहोगे, इंशाअल्लाह कामयाब होगे। वही बड़े पीर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप पे आते हो, फिर सरकार रोज़े की ज़ियारत करते हो, हुज़ूर खतीब इब्राहिम की बारगाह में फातिहा पढ़ते हो, फिर आकर के अल्लाह और रसूल की प्यारी बातें सुनते हो, कितना अच्छा लगता है। लिहाजा मैं आप सबसे कहूँगा कि बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलो। मेरा मुर्शिद ऐसा मुर्शिद नहीं है, हुज़ूर खतीब इब्राहिम की ज़ात ऐसी ज़ात है। आपने सुना होगा जब भी किसी कि अकल खो जाती है तो वो अनाप शनाप पकने लगता है, औल फौल पकने लगता है, लोग कहते हैं मजसूब हो गए हैं, इन्हें बोलने दिया जाए। बेशक हुजूर खतीबुल इब्राहिम अलैहि रहमतुल रिज़वान चल रहे हैं यहाँ, लेकिन मुड़ के उधर जा रहे हैं, अब वो चल रहे हैं वहाँ, मुड़ के उधर जा रहे हैं। ऐसे आलम में जब जश्न का आलम था, हुजूर खतीबुल इब्राहिम सन 2011 में, जब सन 2010 में फैज़ाने करीम नवाज कोहली की बुनियाद रखी गई, उसी आलम में आप तशरीफ ले गए। और जब वहां पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद यह हुआ कि हजरत को बुलाया जाए और दुआ करा दी जाए। सलाम हो रहा था, हजरत तशरीफ लाते हैं, अल्लाहू अकबर। जज्ब के आलम में भी मेरे मुर्शिद की जबान से सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू की आवाज आती रही और 1 मिनट रही, तकरीबन घंटों ऐसे अल्लाह 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 यही लफ्ज आपके जबान से
निकल रहे थे। तो दोस्तों ये अल्लाह वाले होते हैं। तभी तो किसी शायर ने कहा है, देखने वाले कहा कहते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत उनकी। ऐसे लोग होते हैं कि जब उन्हें देखो तो अल्लाह याद आ जाता है। वही हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वबा की बीमारी फैली है बगदाद में, सारे लोग परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैरान हैं। बताइए अल्लाह के वली के ज़बान से अगर कोई बात निकल जाए, तिर्याक बन जाए, शिफा बन जाए। अब सारे लोग दवा कराते कराते आजिज हुए तो किसी ने कहा बड़े पीर की बारगाह में चलें। काफी लोग आए, कहने लगे हुजूर घर पूरा साफ हो रहा है, बीमारी ऐसी फैली है जो इलाज नहीं हो पा रहा है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं अगर शिफा चाहते हो तो मेरे इस मदरसे के ग्राउंड के घास को ले लो और ले जाके पीस के और मेरे मदरसे का जो कुआं है ये पानी निकाल लो, ये पानी ले जाके पिलाओ, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगा। और वो लोग ऐसा किए तो शिफा पा जाते हैं। अल्लाह के वली की बारगाह में जाया करो, अकीदत व मोहब्बत से जाया करो और अकीदत का नजराना पेश किया करो। दोस्तों उनके नक्शे कदम पे जब चलोगे तो इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। मैं आप सबसे कहूंगा मोबाइल हर किसी के हाथ में है, लेकिन दोस्तों आप चाहते हो मेरी माँ गुनहगार ना हो, आप चाहते हो मेरा बाप गुनहगार ना हो, आप चाहते हो मेरा उस्ताद गुनहगार ना हो, आप चाहते हो मेरा पीर गुनहगार ना हो, तो अपने मोबाइल पर कभी काले का टोल ना रखना। हो सकता है बाप लगा दे और वो काला जिसका सुनना हराम है तुम्हारा बाप सुन ले, किसी मकसद के तहत फोन लगाए, उस्ताद लगा दे वो भी सुन ले। आज से अहद करो कि उसे निशानी में मैं गया था, इंशाअल्लाह जब तक मोबाइल रहेगी कभी कॉलर टोन पे कोई खाना। ये सब काम करो नौजवानों, बेशक आप आए हो। दोस्तों इतनी सारी किताबें दारुल कलम से निकल रही हैं, आप किताबें खरीदो और खरीद करके लोगों के हवाले करो। अल्लाह ताला हमको आपको सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक और रफीक अता फरमाए और सौम व सलात का पाबंद बनाए। यही मिशन खतीबुल बराहीन का था, इसी मिशन को आप कायम रखो, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल